Ladies and gentlemen, ख़वातीन और हज़रात, आदाब। देखिए, Urdu in India and India in Urdu. We'll talk about both and we'll keep it bilingual. But क्योंकि जावेद साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं तो उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, तो ज़रा थोड़ी सी उर्दू भी बोली जाए. And of course we'll keep most of it bilingual and try and explain to people who don't understand the language. लेकिन हम कुछ उर्दू भी बोलना ज़रूर चाहेंगे. So to speak of Urdu is actually to, open a door to lived experiences of emotion. And there's nobody better to open that door than Javed Saab, because today what we need is really a candid and straight conversation on Urdu. And Javed Saab is somebody who, as you all know, does neither sugarcoats nor takes the easy way out. खुद अपने बारे में फरमाते हैं कि जिधर जाते हैं सब, जाना उधर अच्छा नहीं लगता. जिधर जाते हैं सब, जाना उधर अच्छा नहीं लगता. मुझे पामाल रस्तों का सफ़र अच्छा नहीं लगता. गलत बातों को खामोशी से सुनना, हामी भर लेना. गलत बातों को खामोशी से सुनना, हामी भर लेना. बहुत हैं फ़ायदे इसमें मगर अच्छा नहीं लगता. Javed Saab, thank you very much, first of all, for coming all the way from Mumbai to be at the festival. And before we dive deeper, let me begin with asking you a very basic and fundamental question. अक्सर ये कहा जाता है कि उर्दू जो है वो एक मुकम्मल तहज़ीब का नाम है. It's a complete culture in itself, an exhaustive culture in itself. But then there are those who are still deliberately or otherwise confused about its origin. कहाँ की ज़बान है ये? तो ये बताएं कि जो अभी मैंने दाग का मिसरा पढ़ा कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, तो किसका नाम है उर्दू? Thank you. Actually, when you said, Saif Saab, that many people here may not understand Urdu, it's not true. The fact is that 95%, if not more, North Indians particularly, understand Urdu. But as long as they understand it, they think it is Hindi. When they stop understanding it, then they suspect it is Urdu. And this confusion is, reasonable in a way, I should say, because there are no two languages in the world that have same grammar, same syntax. Now, let's start kahan ki hai language. Let's take the map of the world and start making right signs or cross on the countries where Urdu is spoken or written. So you will know that leave aside the diaspora of Indian subcontinent, Urdu is only spoken in India and Pakistan. Pakistan, which till yesterday was the part of India. So it is an indigenous Indian language. Now, sometimes people suspect because of its script that maybe this script is Persian script, so maybe it has come from somewhere else. In that case, you can suspect, you can have same kind of suspicions on English, French and German, because their script is Latin. And even in the Second World War, when England was on one side and Italy was another, they kept the script Latin. They didn't change it. Look at Punjabi. Punjabi is written in Devanagari, is written in Gurmukhi, and even in Urdu script. But it remains Punjabi. When I write a Hindi film's title in English letters, actually Latin letters, it neither becomes Latin nor English. The word remains kuch kuch hota hai Hindi or Urdu, because kuch kuch hota hai is neutral. It is neither Persianized Urdu nor Sanskritized Hindi. Kuch kuch hota hai is neutral. It is both Hindi and Urdu. No two languages in the world can claim this kind of similarity. So what is language? Is it the vocabulary? Okay. If not the script, then vocabulary. Okay. ये हॉल ब्राइट है.
Am I speaking English? Although I have spoken only 4 words. Out of 4, 2 important words are in English. Hall, bright. On one side you have one ye, on another side hai. This ye and hai are deciding the syntax, the grammar. Actually, ultimately, you can use words, if you allow me, because I'm asking your permission, because this is something that I have repeated umpteen times. So I don't know how many of you have heard it, how many you have seen on YouTube, but this is a very, very good example as far as the words in a language are concerned. I'll repeat a paragraph. Repeat, I'm saying, because I've done it many times. And if anybody has with any problem with a word that is not familiar or understandable, please raise the hand. एक मकान में एक गोरा चिट्टा आदमी, एक नन्हा मुन्ना बच्चा बाल्टी से नहाए. बावर्ची ने नाश्ता दिया जिसमें उड़द की दाल और टोस्ट थे. आदमी ने चिक हटाई, संदूक खोला, पिस्तौल निकाला, दीवार पे टंगी बंदूक ली, बाहर ऑटो रिक्शा पे बैठ के चला गया. बच्चा बेबस देखता रहा. Any problem? Is there any word that you have not understood? All right, so let us analyze this. एक मकान, मकान is Arabic. कि एक कमरा में, कमरा is Italian. Camera. In camera meeting, कमरा is a Italian word. एक गोरा चिट्टा, चिट्टा is Punjabi. आदमी again Persian, Arabic, Adam. बच्चा is Persian. नन्ना मुन्ना बच्चा, नन्नो गुजराती. बावर्ची Turkish. उड़द तमिल. टोस्ट English, toast. चिक Turkish, संदूक Turkish, पिस्तौल English, pistol. दीवार Persian, बंदूक Turkish. Now comes a strange combination. Auto rickshaw. Auto is Greek and rickshaw is Japanese, and they have been put together by Indians. So it is not the vocabulary. Vocabulary can come from anywhere. It is the grammar that is the language. And Hindi and Urdu have totally one grammar, one syntax. So both of them are Siamese twins, and but the modern Hindi was born like twins don't get are born exactly at the same time. They take a few minutes, but when languages are twins, they take a few centuries. So the difference between Hindi and Urdu is a few centuries, but they are the twins. There was a dialect which was called Khadi Boli in North India. मैं आ रहा हूँ, तुम जा रहे हो, खाना खाओगे, पानी पियोगे, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, घर जा रहा हूँ. ये सब क्या है? घर बहुत बड़ा है. ये ना हिंदी है, ना उर्दू है, या दोनों है. ये खड़ी बोली है. जैसे वहीं नॉर्थ इंडिया में अवधी भी है. वो क्या, मैं जा रहा हूँ, यहाँ मजावत हैं, तुम आवत हो, वो चेंज हो जाता है. तो ब्रिज भी है. फिर आगे जाइए तो और भी मैथिली भी है. बिहार की तरफ चले जाइए तो और भी लैंग्वेज डायलेक्ट है. मगर ये डायलेक्ट जो था ये सेंट्रल यूपी में, देन दिल्ली में, देन इन अ पार्ट ऑफ हरियाणा बोला जाता था खड़ी बोली. बोली मीन्स, डायलेक्ट मीन्स a language that doesn't have a script. Some people, some 800 years ago, started writing this dialect in Persian script because that was available. Persian was not the language of Persia only, like English is not the language of England alone. That time, particularly in this part of Asia, Persian was the language of the educated people. So even Maratha kings,
their state court language was Persian. Shivaji Maharaj was the first king who brought Marathi also along with Persian. He did not throw out Persian, but he included Marathi also. Otherwise, this word Peshwa. Peshwa is a Persian word. Peshwa, one who walks in front, the leader. आप बोलते बड़ी मुश्किल पेश आई, आपको ये खाना पेश करूं, वो आगे आने को पेश बोलते हैं. तो ये लिखने लगे, दैट इज उर्दू. और वो लैंग्वेज, एक बात सुनी जाती है, ये उस रिलीजन की लैंग्वेज है, इस रिलीजन की लैंग्वेज. उर्दू जो है मुसलमानों की लैंग्वेज है, हिंदी जो है हिंदुओं की लैंग्वेज है. अच्छा, तो ये 10 करोड़ बांग्लादेशी जो थे, उन्होंने तो उर्दू नहीं पढ़ी, वो सब मुसलमान थे. Urdu is my mother tongue. I love my language and I'm very proud of it. But I am totally on the side of those Bangladeshis who refuse to learn Urdu at the cost of Bangla. Very good. Wonderful. Their language was Bengali, Bangla. Languages belong to regions, not to religions. This was one big lie, which was the part of this two-nation theory, which was obviously fake. And it was preached by the extremists, the bigots from both the communities, or the extremists. Ab kya hai, you can make your versions of history. You can divide the land, you can divide wealth. But how do you divide a language? Urdu was the living proof of the fact that two-nation theory is not right, not true. But what could they do? They couldn't say that, all right, you do one thing from tomorrow, you keep all the verbs, we'll keep the nouns. That was not possible. So it had to be pushed on one side. I must, before finishing this long monologue, I must give you a very interesting fact of history. As late as 1797, Shah Abdul Qadir, a gentleman who was an Islamic scholar, translated Quran in Urdu. And most of the muftis and alims of that time and mullahs of that time gave fatwa against him. That how dare he translate this holy book in this heathen, dirty language. Fundamentalists always think the same way. That had happened with Tulsidas also. When Tulsidas were writing Ramcharitmanas in Awadhi, all the Brahmins of Banaras were very upset with him that it is, should remain in Sanskrit, which is our dialect, our language, not in such a common man's language. And they threw him out of the community. And on that occasion, he had written a chaupai. Chaupai means poetry of 4 lines. धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो कि जुलाहा कोहू की बेटी से बेटा न ब्याह, कोटू की जात बिगाड़ न चहू, मांग के खइबो मस्जिद में सोइबो, लेबे का एक न देबे का दोहू. So, वो mindset is always similar. Wherever you are, if you are a bigot, if you are an extremist, you will think the same way. So that is what happened with Urdu. Because now they had to prove two-nation theory, so it was put on one side. Believe me, when I read Urdu poetry, whether ghazal or poems, I mean, I shudder to think that suppose this poet would have written this today, how people would have reacted. He would have been murdered. The kind of poetry has been written in ghazal form of ghazal or poems and so on, 300, 400 years ago. So, Urdu is totally an indigenous Indian language, and Indians and Pakistanis, who were till yesterday Indian, speak this language, nurture this language, love this language. And because the borders between Hindi and Urdu are very porous, we just don't know from where Urdu ends and at one point Hindi starts or vice versa. So you see, all these films,
Indian films, traditionally, most of them are written, whether the lyrics or the dialogue, by Urdu writers. Predominantly Urdu writers. And they were called Hindi films, and nobody has a problem. And we also wrote films. I only write dialogue in Urdu or songs in Urdu, but they are Hindi songs. I have no problem with that, because both the languages are mine. I'm a North Indian. I'm comfortable with both the languages. So why should I think I have only Urdu or I have only Hindi? No, they are not complete without each other. They are Siamese twins. The problem is this. The system inside is the similar one. One cannot live without another. Thank you, Javed Sahab. Actually, following on that question, do you think that Urdu has today become more of a contested symbol of identity than a major cultural language? No, tragedy is that many people believed the two-nation theory's message. And in Delhi, there must be many people from Delhi here. So many people tell me, in 70s they used to talk about their father. Now, time has passed, now they talk about their grandparents. With great pride and fondness. मेरे father तो सिर्फ उर्दू अखबार पढ़ते हैं. ये उधर से जो लोग आए हैं, और यहाँ भी जो है, और या मेरे ग्रैंडफादर को तो साहब जितनी उर्दू पोइट्री याद थी, आपको क्या हमारी तो समझ में नहीं आती है, लेकिन उन्हें तो I asked them, if your grandfather and father used to read Urdu akhbar, why don't you learn Urdu? But somehow the mind has been conditioned that Urdu Pakistan की ज़बान, उर्दू पाकिस्तान की ज़बान नहीं है. ईस्ट पाकिस्तान ने प्रूफ करके अलग कर दिया अपने को. वहाँ किसकी ज़बान है? सिंधी की लैंग्वेज उर्दू है, पठान की लैंग्वेज उर्दू है, पंजाबी की लैंग्वेज उर्दू है. किसकी लैंग्वेज है? It has been imposed on them, and by somebody who couldn't speak Urdu to save his life. It's so ironic. Yeah. एक बार आपको याद होगा जावेद साहब, सागर खयामी का वो कथा, वो बहुत मौजू है जिस जो आप बात कह रहे हैं उस पर, कि दिल्ली में एक बार मटन मिलना बंद हो गया था. सागर खयामी वाज दिस ह्यूमरिस्ट पोएट. उनका कथा है कि 1 महीना हो गया है, बंद है हम पर मटन, दावतों में खा रहे हैं भिंडियाँ अहले सुखन. और खा के घुइयाँ, घुइयाँ अरबी, खा के घुइयाँ क्या दिखलाएं शायरी का बांकपन, हो गए पालक का पत्ता नाजुकी से गुलबदन. और नफरतों की जंग में देखो तो क्या क्या हो गया, नफरतों की जंग में देखो तो क्या क्या हो गया, सब्जियां हिंदू हो गई, बकरा मुसलमान हो गए. तो यही हिंदी और उर्दू के साथ भी हुआ जो आप फरमा रहे हैं. Before we go into the second part of this session, India in Urdu, and that's very interesting and very informative. अच्छा, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं that this title has been suggested by Javed Sahab himself. Urdu in India and India in Urdu, because people talk about Urdu in India, very few talk about how India has been imagined in Urdu. But just before that, एक छोटा सा मैं कमेंट आपसे इस पे भी दरख्वास्त करूंगा कि आजकल जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि हर शख्स उर्दू का शायर बन गया है साहब, आईना साफ कर रहे हैं गालिब और इस तरह की चीजें हो रही हैं, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? आप तो बड़े खतरनाक लोगों को डिस्कशन में ला रहे हैं. मुझे तो आप बाहर ही रखिए. हाँ, नहीं वो तो ठीक है, वो कोई भी चीज़ जो पॉपुलर होती है एक्चुअली उसका इम्पैक्ट इतना है. ये जो उर्दू थी वो अभी उसको तो कम से कम स्क्रिप्ट तो बहुत ही रेयर चीज़ हो गई है हिंदुस्तान में. उर्दू की स्क्रिप्ट, ज़बान नहीं गई, स्क्रिप्ट गई. ज़बान तो हिंदी में है, मौजूद है. आज भी यू आस्क एनी हिंदी पब्लिशर, when the Urdu poetry is published in Devanagari, it is sold 50 times more than any other book. It's so popular. But it is the people's language. That is why it is so popular in cinema. If you take an average film song, I mean, song of the time when there used to be words in the song, I'm talking of those times. So you will see that predominantly these are Urdu words. So they don't read it. They can't write and read Urdu script. But it is in their language. And so often you will notice that when somebody wants to be, I mean, mockingly, very sophisticated or very formal, so he will say, आधा वर्ष है, आधा वर्ष है. तो उसके सबकॉन्शियस में है कि जो sophistication है, अर्बन sophistication, indigenous, वो उर्दू में.
वो उसे मालूम है और होना भी चाहिए, इसलिए कि फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स हिंदू, मुस्लिम, सिख्स, ऑल ऑफ देम urban in urban India, North India, they develop their culture, their तहजीब, their संस्कार in उर्दू. तो वो उनके कल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा है. उसे आप, you can't deny that. You can't just pick it out. No. At the most you can kill the script by not teaching it in the schools. But what will you do when the public has those words in their subconscious, conscious mind, in their idea of aesthetics and beauty and sophistication? How will it go? तो अब हम लोग जो है इसके दूसरे हिस्से पे ज़रा चलें कि इंडिया इन उर्दू. How do you think, Javed Saab, has the idea of India been imagined or romanticized or maybe even challenged in Urdu poetry, especially Urdu literature? And if I may ask this question in a different way, do you think that Urdu literature and especially Urdu poetry can be read as an alternative history of India which records our pluralist ethos? To no end. I was writing a film. I brought some 2 volumes. This is Urdu poetry. The title of these volumes is Hindustan Hamara. It's edited by my father. It took perhaps 2-3 years. He took 2-3 years to edit this. He has selected, it's a selection of Urdu poetry of last 300-400 years. And it is 2 volumes. It is 2. One volume carries all the political or social movements and historical turnings and corners when major events were happening, major milestones were put. What was written in Urdu poetry about that? Freedom movement, 1857, non-cooperative movement, so on and so forth, in the Quit India movement, and about all the big leaders. Then the other volume is about culture, all about great heroes of yesteryears, and all about our cities, weather, deities. There is so much poetry on Radha and Krishna, there is no end to it. Ram, Sita, Shiv, Parvati, the festivals, Holi, Diwali. Now I came to know about a festival because of Urdu poetry that is Kshamavani, a Jain festival. I didn't know about it. So I read a poem on it. Holi, Diwali, I can challenge that no language in this country, our country, India, has better poetry on Holi than Urdu. So every festival has so much. My mother tongue is Urdu. I have learned Urdu at a very young age. And I write film songs. So there was a film I had signed. And then one day Lakshmikant Pyarelal was the music director. Then N. Chandra was the director of the film. He was a very famous director of his time. So when I went to Lakshmikant's music room, he was sitting and they were sitting rather awkwardly. And I said, yes, sir. So what is the next situation and what is the tune? So they exchanged looks and then huffed and puffed. And actually what we were thinking, it was not in the original screenplay, but the idea came and we think that it can be good. I said, come out, tell me what is the problem. So ultimately with all the commas, full stops and so on, they said that actually we thought that we should have an arti of Krishna here. So they were feeling, bichara, how he will be able to write that. So I said, okay, you give me the tune. Do you know that most of the time the tune is made earlier and then the words are written? It's like digging a grave first and then looking for a body which will fit in. So since I am known for finding good bodies for the graves, I have been doing well. So I said, okay, you give me the tune, I'll come back after 2 days. So after 2 days, and rather with a lack of confidence and conviction, they gave me the tune on the cassette. So after 2 days, I went back and I told them that, you see, whatever you've given me was not a tune of Aarti. It was a tune of a song.
Because aartis have a crescendo. They go up and the tempo increases in the end. You have not given that. So I have written that on my own and you can compose it. And I have written the whole crescendo with the names of Krishna, nothing else. The title of the film was Yugandhar. Yugandhar means one who changes the yug. So I'll recite it for you. वो कृष्ण कन्हैया मुरलीधर मनमोहन कान मुरारी है, गोपाल मनोहर दुख भंजन घनश्याम मटल बनवारी है, बनकुंज फिरैया सांवरिया नंदलाला काल मुरारी है, वो कंस विनाशक महारथी सुदर्शन चक्रधारी है, सब रूप निराले हैं उसके हर लीला उसकी न्यारी है, वो गोपीनाथ मदन मोहन वो श्याम पीताम्बर आएगा, आएगा युगांधर आएगा, आएगा युगांधर आएगा. So they were rather flabbergasted. They said, how do you know so many names of Krishna which we don't know? I said, because I know Urdu. So in Urdu, there is so much of poetry. There are beautiful poems on Holi, Diwali, Guru Nanak, wonderful poems. And obviously I can't read all of, on Ganga, I can't read all of them, but even you can't read only one poem also, because there was a time when they used to write rather long poems, but I'll choose some stanzas. So, shall we, which one are you? Ganga ke teen roop. Now this is written by an Urdu poet who was born and who died in Banaras, who lived all his life in Banaras, and he has written Ganga ke teen roop. Actually, today they should have given us little. नहीं साहब, आप ये दादा पकड़ ले. अच्छा ये हो सकता है. होगा. गंगा के या बताइए. She can't even see me sitting comfortably. That's a sensible suggestion. Thank you. That's a very, very practical thing. गंगा के तीन रूप by नज़ीर बनारसी. वो सूर्य डूबा वो दिन ने झुक के बढ़ा दिया रोशनी का डेरा, वो रख के कांधे पे काली कमली हर एक तरफ से उठा अंधेरा, उदासियां बढ़ के चार जानिब लगाए जाती हैं अपना फेरा, लुटेगा अब सांझ का भी जेवर है घात में रात का लुटेरा, समय ने करवट बदल बदल के जो सूनी कर दी हैं सारी राहें, तो सांस ले के लंबी लंबी हवाएं भरने लगी हैं आहें, किए हैं ये दान दीप किसने, यू टेक दीप बर्निंग दिए और वो आप गंगा की लहरों में बहा देते हैं, किए हैं ये दान दीप कितने ठहर ठहर कर मचल रहे हैं, ये रोशनी के जिगर के टुकड़े हवा से टुकड़े बदल रहे हैं, नहीं नहीं ये दिए नहीं हैं, नहीं नहीं ये दिए नहीं हैं जो बहते पानी पे जल रहे हैं, गगन से तारे उतर उतर के लहर लहर पर टहल रहे हैं, दिए की लौ सहमी जा रही है, हवा का झोंका लपक रहा है, वो चमचमाते कलश का आलम वो सर उठाए उठाए मंदिर, वो इतने ऊंचे कि जिन पे अपनी नज़र उठाते हुए उठे सर, है कान में कुछ मधुर सदाएं, नयन में शीन आरती का मंदिर, जो आखिरी आरती रात को होती है मंदिर के कबाड़ बंद करने से पहले होता है, शीन आरती कहते हैं, पवित्रता की वो मौज जैसे अंधेरा दिल हो उठे उजागर, इधर दबे पाऊँ नींद आई गई वो गंगा की बेकरारी, किवाड़ मंदिर के बंद करके अभी अभी सो गया पुजारी, बुझी बुझी सी दिखाई देने लगी हैं जलती हुई चताएं, दबी दबी सी है अग्नि ज्वाला है सर थी मौत की सभाएं, फिजाओं में टूट कर गगन से गिरती पड़ती हैं तारिकाएं, कि साधना लोग तोड़ने को उतर आई हैं सब अब अस्पराएं, वो काले काले शनाग जैसा हर एक तरफ झूमता अंधेरा, समय की वो साएं साएं जैसे बजाए तुमड़ी कोई सपेरा. रुक जाइए I'll tell you, when I whistle, clap. अब
सुबह का मंजर आता है यहाँ से। शहर शहर मॉर्निंग, शहर की आमद है, सर झोंके अभी से कुछ गुनगुना रहे हैं, कथा कह रहे हैं तुलसी, कबीर दोहे सुना रहे हैं। अमर है वो संत और साधु जो मर के भी याद आ रहे हैं, जो काशी नगरी से उठ चुके हैं वो मन की नगरी बसा रहे हैं। ये घाट तुलसी के नाम का है, यहीं वो करते थे जाप देखो, जहाँ पे गंगा वहीं पे तुलसी, पवित्रता का मिलाप देखो। बहुत से है, ये बस इतना ही आपको सुनाता हूँ, और भी है आगे, लंबी पोएम है, लेकिन मैं आपको एक ही क्यों सुनाऊँ। हाँ, होली की सुनाइए। अब देखिए, ये तो नज़ीर बनारसी थे, एक और शायर थे, उनका नाम था नज़ीर अकबराबादी। अकबराबाद जो है आगरा के पास है। तो उन्होंने कई पोएम्स लिखी, मैं एक पोएम को एक दो बंद दूसरी पोएम के सुनाता हूँ आपको। होली की बात। जब फागुन रंग झमकते हो तब देख बहारे होली की, और दफ के शोर खड़कते हो तब देख बहारे होली की, परियों के रंग दमकते हो तब देख बहारे होली की, खुमशीशे जाम छिलकते हो तब देख बहारे होली की, महबूब नशे में छकते हो तब देख बहारे होली की। हो नाच रंगीली परियों का, बैठे हो गुल्लू रंग भरे, कुछ भीगी ताने होली की, कुछ नादो अदा के ढंग भरे, दिल भूले देख बहारों को और कानों में आहंग भरे, कुछ तबले खड़के रंग भरे, कुछ ऐश के दम मुचंग भरे, कुछ घुंघरू ताल छनकते हो तब देख बहारे होली की। गुलजार खुले हो परियों के और मजलिस की तैयारी हो, कपड़ों पे रंग के छींटों से कुछ रंग अजब गुलकारी हो, मुँह लाल गुलाबी आंखें हो और हाथों में पिचकारी हो, उस रंग भरी पिचकारी को अंधिया पे टक्कर मारी हो, सीनों से रंग ढलकते हो तब देख बहारे होली की। इसी ने एक दूसरी पोएम भी लिखी है। हाँ है जी, ये दूसरी पोएम है, इसका नाम सिर्फ होली है, वो बहारें होली की थी। जब आई होली रंग भरी सो नौजवता से मटक मटक, और घुंघरू और घूंघट के पट खोल दिए वो रूप दिखाया चमक चमक, कुछ मुखड़ा करता दमक दमक, कुछ अबरन करता झलक झल, जब पाँव रखा खुशवक्ती से तब पायल झनकी झनक झनक, कुछ उथली संते नाज भरी, कुछ कूदी आमी थरक थरक, ये रूप दिखाकर होली के जब नयन रसीले टुक मटके, मंगवाए थाल गुलाबों के भर डाले रंगों के मटके, फिर सांग बहुत तैयार हुए और ठाठ खुशी के झुरमुटके, गुलशोर हुए खुशहाली के और नाचने गाने के खटके, मृदंगे बाजे ताल बजे, कुछ खनक खनक कुछ धनक धनक, जब आई होली रंग भरी सोहदता से मटक मटक। तो बहुत ये भी लंबी नज़्म है। एक्चुअली आई विल रिकमेंड बिकॉज इट इज इन देवनागरी, पब्लिश्ड बाय राजकमल, तो यू कैन गेट इट ऑन अमेज़ॉन। ये 2 वॉल्यूम है और ये इसमें कोई हद ही नहीं है, अब सुनाते ही चला जाऊँ मैं आपको, तो हर पोएम ऐसी है। कौन सा एक देखिए, ये तो है पुराना, ये है सब नज़ीर तो वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर, तो समझिए 500 साल पहले का जो अभी मैंने सुनाई आपको, तो ये 500 साल पहले। अभी जो पिछले दिनों में से इन 20th सेंचुरी, मिड 20th सेंचुरी, जो हमारा प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट था, उसके एक बहुत बड़े शायर थे सरदार जाफरी, और वो अवध के थे। अवध मीन्स सेंट्रल यूपी, जिसको हम लोग कहते हैं ना गंगा जमनी तहजीब। अवध वॉज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट। अवध का जो कल्चर है, देखिए मैं वहीं पैदा हुआ हूँ तो थोड़ा इसमें मेरा एक ज़रा सा बायस भी होगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, हमको I was born in a Muslim house, but they were not religious people at all. Actually, my mother and father were atheists. So मुझे इनहेरिटेंस में यही मिला, उसके अलावा तो कुछ छोड़ के गए नहीं वो। तो मगर ये है कि कल्चर था, वो हमने इनहेरिट किया, और वो जो अवध से मोहब्बत है वो आप देखिए, ये भी वहीं के हैं। दिस पर्सन वॉज इन जेल during freedom movement, and he wrote this poem, Sardar Jafri, from the jail. And he is remembering, it's a long poem, मैं उसका एक पीस सुना रहा हूँ सिर्फ आपको। मेरे तसव्वुर में साकियों का खराम रंगी, न जाम मीना की गर्दिशें हैं। कुछ ऐसा लगता है ना उर्दू पोइट्री में साकी है, जाम, मीना, कहते मेरे इमेजिनेशन वो नहीं है, न मैं कदे हैं न शोरिशें हैं,
मैं छोटे छोटे घरों की छोटी सी जिंदगी में गिरा हुआ हूँ, अंधेरे कदमों को याद करके तड़प रहा हूँ। वो जिनकी गलियों में मेरे बचपन की यादें अब तक भटक रही हैं, जहाँ के बच्चे पुराने कपड़े की मैली कौड़ियों से खेलते हैं, वो गांव जो सैकड़ों बरस से बसे हुए हैं, किसानों के झोंपड़ों पर तरकारियों की बेलें चढ़ी हुई हैं, पुराने पीपल के जड़ में पत्थर के देवता बेखबर पड़े हैं, कदीम बरगद के पेड़ अपनी जटाएं खोले हुए खड़े हैं। ये सादा दिल गरीब इंसान नेकियों के मुजस्समे हैं, ये मेहनतों के खुदा, ये तख्लीक के पैगंबर जो अपने हाथों के खुरदुरेपन से ज़िंदगी को संवारते हैं। लोहार के घन के नीचे लोहे की शक्ल तब्दील हो रही है, कुम्हार का चाक चल रहा है, सुराहियाँ रक्स कर रही हैं, सफ़ेद आटा स्याह चक्की से राख बनकर निकल रहा है, सुनहरे चूल्हों में आग के फूल खिल रहे हैं, पतीलियाँ गुनगुना रही हैं, धुएं से काले तवे भी चिंगारियों के होठों से हंस रहे हैं, दुपट्टे आंगन में डोरियों पर टंगे हुए हैं और उनके आंचल से धानी बूंदें टपक रही हैं, सुनहरी पगडंडियों के दिल पर स्याह लहंगों की सुर्ख गोटे मचल रही हैं। ये सादगी किस कदर हंसी है। मैं जेल में बैठे बैठे अक्सर ये सोचता हूँ, जो हो सके तो अवध की प्यारी ज़मीन को गोद में उठा लूँ और इसकी शादाब लहलाती हुई जबी को हज़ार बोतों से जगमगा दूँ। क्या अपने देश, क्या अपनी ज़मीन से मोहब्बत है इसमें, कमाल है। तो ये जो कल्चर पे, ये एक वॉल्यूम सिर्फ हमारे त्यौहार पे, कल्चर पे। मैं आपको गुरु नानक देव का भी इसी में है, ज़रा निकालिए हुजूर, कि आपको पूरी तो पोएम नहीं, थोड़ी सी मैं सुनाता हूँ। हाँ, ये सब, ये आप लोग किताब लीजिए, इसमें आपको इसका जो आप इंडेक्स देखेंगे उसी से आप हैरान हो जाएंगे कि किस पे। मैं एक इसमें है जो मैं कभी सुनाता नहीं किसी को, बिकॉज आई मेक अ फूल ऑफ माई सेल्फ। वो है महालक्ष्मी बाई पे, लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, उन पे जो पोएम, एक लॉन्ग पोएम है, बिकॉज आई ब्रेक डाउन। तो मैं पब्लिक में इसलिए नहीं सुनाता हूँ कि मेरी एज में लोग रोते ज़रा गुड लुकिंग नहीं लगते। अब देखिए, आपकी वजह से खड़ा हो गया हूँ, अब आप चाहती हैं मैं लेट भी जाऊँ, ये नहीं होगा है। देखिए क्या बात है, क्या लिखा है कहते नानक शाह जिन्हें वो पूरे हैं आगाह गुरु, वो कामिल रहबर जग में हैं यूं रोशन जैसे माँ गुरु, मकसूद मुराद उम्मीद सभी बदलाते हैं दिलख्वाह गुरु, नित लुत्फ़ करम से करते हैं हम लोगों का निर्वाह गुरु, इस बख्शिश के इस अज़मत के हैं बाबा नानक शाह गुरु, सब सीर नवा अरदास करो और हरदम बोलो वाह गुरु। दिन रात जिन्होंने यहाँ दिल विच है याद गुरु से काम लिया, सब मन के मकसद पाए हैं खुश वक्ती का हंगाम लिया, दुख दर्द में अपना ध्यान लगा जिस वक्त गुरु का नाम लिया, पल बीज गुरु ने आन उन्हें खुशहाल किया और थाम लिया, इस बख्शिश के इस अज़मत के हैं बाबा नानक शाह गुरु, सब सीस नवा अरदास करो और हरदम बोलो वाह गुरु। ये लंबी नज़्म है, ये भी आप लोग ज़रूर ये आप लेके आप पढ़ेंगे, और पढ़ने का आपको टाइम ना मिले तो अगर आपने सिर्फ इसका इंडेक्स देख लिया कि कौन कौन से टॉपिक पे कितनी पोएम्स हैं, इट इज़ अ सिलेक्शन ऑफ उर्दू पोइट्री ऑफ लास्ट 400-500 ईयर्स, तो उसमें उन्होंने चूज़ करके डाली हैं। इससे तो बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव पोएम्स हैं। वो आप देखिए क्या क्या है, क्या क्या लिखा गया है। लेट्स बी रियलिस्टिक, साहब बात करूं मैं आपसे, आज तो कई मुसलमान जो हैं वो पॉलिटिकली करेक्ट काम करेंगे ऐसी पोएम लिख के, मगर 500 साल पहले उन्हें पॉलिटिकल कंसेशन तो नहीं चाहिए था ना पोएम्स लिख के। इट वॉज देयर रियल रिस्पेक्ट और एडमिरेशन फॉर दीज डेटीज। कृष्ण पे जो लिखा गया है, मैंने आपको मिसाल दी, मैंने कहाँ से इतने वर्ड सीखे, बिकॉज आई नो उर्दू पोइट्री, दैट्स माई ओनली सोर्स। तो कितनी पोइट्री है,
राम पे, कृष्ण पे, शिव पे, पार्वती पे, कोई एंड ही नहीं। बनारस गालिब ने पूरी मसनवी कही है बनारस में। जी 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 जी। बनारस ये जा रहे थे, हाली फुर्सत का ज़माना था भाई, वो जा रहे थे कलकत्ता, तो रास्ते में बनारस पड़ता था, उन्हें बनारस इतना पसंद है 3-4 महीने वो बनारस में ही रुक गए। ये रियलिटी है। तो बनारस में ही 3-4 महीने रहे। अब तो आप तशरीफ हम लोग लाइए। को तो इतना टाइम नहीं, वो नहीं, मुझे दूसरी भी दीजिए, मैं आपको दूसरा इसका एस्पेक्ट दिखाऊं जो पॉलिटिकल है। वो पालनहारे। सर अगले सेमिनार में किसी को बुलाइएगा जो मेरे बारे में बात करे, खुद तो मैं कर नहीं सकता। हाँ, ये देखना पड़ेगा। तक वो निकाल रहे हैं। दिल्ली में रेख्ता फेस्टिवल में हम लोग अंदर दाखिल हो रहे थे तो वहाँ बहुत सारे शायरों के पोस्टर्स लगे थे। तो जावेद साहब ने देखा और उनसे कहा कि अरे यहाँ निदा फाजली साहब भी हैं, हमारा क्या कसूर है भाई, ये कि हम अभी तक मरे नहीं। सारे मरे हुए शायरों की तस्वीरें लगी। अरे भाई हमने यही गलती की कि सही टाइम पे मरा नहीं। आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हाँ ठीक है, यही पढ़ूँ कि जब 71 में बांग्लादेश पैदा हुआ, एमर्ज हुआ विद ग्रेट हेल्प ऑफ इंडिया, तो उर्दू में बहुत पोइट्री बांग्लादेश पे लिखी गई, मगर जो सेलेक्टेड जो 2 पोएम्स, इसमें हर टॉपिक पे बहुत सी नज़में हैं मगर कुछ सेलेक्ट करके रखी गई हैं, सारी तो आप नहीं रख सकते किताब। तो उनमें से एक पोएम जो है मेरे फादर इन लॉ की लिखी हुई है, कैफी आज़मी, और एक मेरे बाप की लिखी हुई है, जानिसार अख्तर। दोनों ने पोएम लिखी हैं। अच्छा, मैं इस वक्त अपने फादर की पोएम का कुछ हिस्सा सुनाऊंगा, इसलिए कि कैफी साहब ने तब लिखी थी जब स्ट्रगल था बांग्लादेश बनने का, एंड द वॉर वॉज ऑन। वो भी बहुत उम्दा है, और लेकिन मैं वो इसलिए पढ़ूंगा कि उसमें एक अजीब तरह का एक फारसाइट है। जो मेरे फादर की पोएम जहाँ ख़त्म होती है वो आज ख़त्म होती है, आज के दिन जो हम देख रहे हैं। स्ट्रेंज बात, वो कहते हैं ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जावेद साहब, फादर और फादर लॉ में से बेहतर पोएम किसकी है? बेहतर तो वो होती जो मैं लिखता। है देखिए, अब ये जो मैं कैफी साहब की पोएम का जरा सा हिस्सा सुनाता हूँ, एंड देन आई विल गो बिकॉज़ आई हैव टू गो होम आल्सो। I assure you it wasn't a planted question. मैं कोई मुल्क नहीं हूँ कि जला दोगे मुझे, कोई दीवार नहीं हूँ कि गिरा दोगे मुझे, कोई सरहद भी नहीं हूँ कि मिटा दोगे मुझे। ये जो दुनिया का पुराना नक्शा मेज़ पर तुमने बिछा रखा है, उसमें कावाक लकीरों के सिवा कुछ भी नहीं। तुम मुझे इसमें कहाँ ढूंढते हो? मैं एक अरमान हूँ दीवानों का, सख्त जहाँ ख्वाब हूँ कुचले हुए इंसानों का। पीने लगता है जब इंसान का इंसान लहू, लूट जब हद से सिवा होती है, जुल्म जब हद से गुजर जाता है। मैं अचानक किसी कोने में नज़र आता हूँ, किसी सीने से उभर आता हूँ। आज से पहले भी तुमने मुझे देखा होगा, कभी मशरिक़ कभी मगरिब, कभी शहरों में कभी गाँव में, कभी बस्ती में कभी जंगल में। मेरी तारीख़ है, जोग्राफिया कोई भी नहीं। आई ओनली हैव हिस्ट्री, आई डोंट हैव जोग्राफी। यहाँ से वो शुरू हुई कि जहाँ एंड होती है, कौन से हाथ में जंजीर पहनाओगे तुम बताओ कि मेरे हाथ तो हैं 7 करोड़। कौन सा सर मेरी गर्दन से जुदा कर दोगे, मेरी गर्दन पे है सर 7 करोड़। ये when the idea of Bangladesh there, when the war and struggle was on. Now the poem of my father is after Bangladesh became a reality and our forces were coming back. किसी कोने में भी दुनिया के अगर जुल्म हुआ, हमने आवाज़ उठाई कि ये खून बंद करो, अपनी नापाक सियासत का फुसू बंद करो, ये तशद्दुद, ये मज़ालिम, ये जुनून बंद करो। अर्ज़े बंगला, लैंड ऑफ बंगाल, तुझे मिटते हुए देखा न गया, अपनी रग रग में हमीयत का लहू जाग उठा, फ़र्ज की आँच से गैरत का लहू जाग उठा। तू के टैगोर की नज़रुल की जन्मभूमि है, कल भी थी आज भी है तुझसे
अक़ीदत हमको, तेरे गीतों से मोहब्बत का चलन सीखा है, तेरी नज़मों ने सिखाई है बगावत हमको, तुझसे बेगाना जो रहते भी तो रहते कैसे, अपने सरहद से मिली है तेरी सरहद ऐसे, बाहें बाहों में मोहब्बत से पड़ी हूँ जैसे। हमने सीने से कलेजे से लगाया बढ़कर तेरे रौंदे हुए कुचले हुए इंसानों को, हम उठे तेरे लिए मेरी अपनी मोहब्बत के लिए, हमने सोचा भी नहीं आग के तूफ़ानों को, तेरा दुख बांट लिया दर्द तेरा बांट लिया, तुझसे हर शर्त रफ़ाक़त की निभा दी हमने, सिर्फ अल्फाज नहीं अपना लहू नज़र किया, किस तरह साथ दिया जाता है मज़लूमों को, एक नई राह ज़माने को दिखा दी हमने। अब ख़त्म कहाँ होता है? आज हमको तेरी धरती से चले जाना है, तेरे फूलों तेरी कलियों को दुआएं देकर, तेरी महकी हुई जुल्फ़ों की बलाएं लेकर। तू हंसी है तेरी महकी हुई जुल्फ़ें भी हंसी, तेरे अबरू भी हंसी हैं तेरी आंखें भी हंसी, अर्ज़े मंगला तुझे कल और हंसी बनना है, तेरे तारों से सजेंगे कितने तारों से सजेंगे तेरे गेसू जाने, कल तेरे बाग में झूमेंगी बहारें क्या क्या, हम तलक आए कि ना आए तेरी खुशबू जाने, हम तुझे याद रहे याद न रहे तू जाने। तो हम याद नहीं रहे। तो बहुत में एक खजाना है, मैं आपको कहाँ तक सुनाऊं। तो ये आप लोग किताब जो भी ज़रा से इंटरेस्टेड है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द कल्चर, व्हाट इज़ द इथॉस, व्हाट इज़ द जनरल थ्रस्ट ऑफ उर्दू पोइट्री, वो आपको इन किताबों में मिलेगा। So we can open the session to questions. We have about 7 minutes. Is there somebody's passing on the mic? जी, या सबसे यहीं से शुरू करें, सबसे आगे से. There's a gentleman here who's been raising his hand. Yeah. And then I'll come to you, madam. Yes, and we'll come here. नमस्ते, मैं थोड़ा दूसरा सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, टॉपिक से रिलेटेड। जो बचपन में हमें जो गुट्टी पिलाई जाती है कि सारे रास्ते बंद हो जाए तो उसको याद करना, ये हमारे जहन से हमारे मन से कैसे निकाले कि, और निकाले तो किसके पास जाए जब हम कश्मकश में होते? बैठिए, ये दूसरा प्रॉब्लम है और बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। बचपन में आपको ये नहीं बताया था कि तुम ये जो गर्मी में दोपहर होती है बाहर ना जाया करो, जब लू चलती है भूत उठा ले जाएगा, बताया गया हो ना? तो अभी भूत को कैसे निकाल दिया आपने घर से? और जो ज़रा वेस्टर्नाइज कल्चर के लोग होते थे, जब बच्चे के दांत टूट जाता था तो टूथ फेरी आती थी, टूथ फेरी को आप कैसे भूल गए? फिर हमारे यूपी में एक लकड़ सूंघे होते थे, लकड़ सूंघे बच्चों को बताया गया था, हमें भी बताया गया था, आपको याद है? वाह, कि देखो तुम धूप में बाहर अकेले जाओगे ना, क्योंकि बच्चों को घर में रखना चाहते थे धूप के वक्त, तो बहुत सख्त धूप होती है, तो तुम्हें लकड़ सूंघा ले जाएगा। लकड़ सूंघा बताया था उन्होंने कि होते हैं बड़े बड़े बैग होते हैं, उनके पास एक छोटी सी लकड़ी होती है, बस बच्चे को ऐसे सूंघा देते हैं, बच्चा बेहोश हो जाता है और उसमें झोले में रख के बैग में लेके चले जाते हैं। तो आप अभी ना भूत आपको है, ना ये अपना है टूथ फेरी है, ना लकड़ सूंघा है, तो अभी एक लकड़ सूंघा बचा है, गॉड, उसे भी अब आप जाने दीजिए। अच्छा, सॉरी, कैन आई जस्ट द लेडी हियर प्लीज, एंड देन जी आप ये बीच में पीछे खातून जो, जी नेक्स्ट टू यू मैडम, यस आप, जी। अच्छा, एक चीज और, क्योंकि सिर्फ 7-8 मिनट हैं तो बराह करम सिर्फ सवाल ऐसे पूछें जो उर्दू पर हो, लकड़ बग्घे पे नहीं। जी बहुत जरूरी है। जी, अगर उर्दू तो फिर भी बच जाएगी। इत्तेफाक कीजिए कि उर्दू का मतलब, ये रिलीजियस लोग कैसे बचेंगे? हाँ। अगर आप इत्तेफाक करिए कि उर्दू का मतलब मायनी लश्कर है, और इस वजह से है कि थोड़ा माइक पास ले लीजिए, किस कदर ज़्यादा ज़बानें इसमें, जिस तरह आपने कहा कि हिंदी, संस्कृत, अंग्रेज़ी, इटालियन, अरबी, तो लश्करी हुआ ना, तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि ये इंडिजिनस इंडिया की है? इंडियन जैसे लैंग्वेज जो है, आपको एक बात बताऊं, लैंग्वेज जो है, मैंने यही अर्ज किया कि अपनी सिंटेक्स होती है, वोकैबुलरी कैन कम फ्रॉम एनीवेयर। एब्सोल्युटली। जैसे अभी बहुत सारे हमारे वर्ड जो हैं ये नहीं, लेकिन फिर ये ना कहिए ना कि इंडिजिनस टू इंडिया है, इट हैज कम फ्रॉम एवरीवेयर, फ्रॉम अरब,
from The words from, are not language. no, they're not. They ultimately it is the syntax that is the language. Okay, And the syntax has not come from anywhere. Okay. It is not Persian syntax, it is not Arabic syntax, it is not Armenian or it is not Hebrew syntax, it is syntax of Khadi Boli. और इस सदी के भी शायर जो हैं कौन से हैं जिसको आजकल मर्डर, आपने इल्लामा इकबाल की शायरी नहीं सुनी? उसमें हर जगह जिक्र है जाम का प्याम का, उसको किसने मर्डर किया? तो मैंने तो बल्कि खुद एक मर्डर किया था, सुनते ऐसा ही है। वो भी तो इंडियन ही थे। अल्लामा इकबाल died in 1935. Doesn't matter. हाँ तो he died an Indian. ये हाँ। याद रखिएगा। नहीं तो हम ये कह रहे हैं जी। कि कोई उनको कत्ल करने को आजकल के जमाने में नहीं बैठा होगा। अच्छा अच्छा चलिए हम याद कर लेंगे, आप फिक्र न कीजिए। ओके। कत्ल करना जी। Hello. Over multiple years, sir, language has continuously diversified. So if we keep going back, Proto-Indo-European is the mother of all the European languages up until north of Gujarat. तो ये diversification इतने सालों तक हो रहा था, पर अब consolidation हो गया है. Everybody just wants to speak English. सब एक ही ज़ुबान बोल रहे हैं. इसका फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है? देखिए, ideally, if we have some international language, it's helpful. If every country will start speaking strictly their own language, then it will be a problem. So good, because of some stroke of luck or history or coincidence, we have developed an international language. We have found an international language because of one reason or another. Let's not go in the reason. But it's good. But we should not learn this international language at the cost of our mother tongue. I am not saying that you should not learn. Any parents who are not teaching their child English is doing great harm to him. But any parents who are not teaching the mother tongue of the child, again they are harming the child. Yes, please. हेलो Gentleman here. Yes. हेलो जावेद साहब, मेरा प्रश्न था कि उर्दू इन इंडिया, अभी उर्दू आप कह रहे हैं स्क्रिप्ट इज़ नॉट वेरी कॉमन एंड ये हमारे बाप दादाओं की ज़ुबान ना रहे, ये हमारी ज़ुबान रहे, हमारी लिए पीढ़ी की ज़ुबान रहे. उसके लिए हमें क्या इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट चाहिए कि आपके बेटे, हमारे बच्चे सब उर्दू भाषा को, क्योंकि लिपि का मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि भाषा तो ज़िंदा रहेगी, पर लिपि के नुकसान से हम कितनी किताबें नहीं पढ़ पाते, कितना लिटरेचर से वंचित रह जाते हैं. तो उसके लिए आप क्या करना चाहिए और क्या एक आप विजन देंगे? अब देखिए, कुछ बातों का जवाब बड़ा सिंपल होता है. मैं आई यूज्ड टू ड्रिंक एंड आई ड्रिंक हेवीली. आई स्टॉप ड्रिंकिंग on the 31st of July 1991 and never touched alcohol. तो वो लोग जो अभी भी पी रहे हैं, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आप एक बात बताइए, ये शराब कैसे छोड़ा जाए? तो मैं बहुत सिंपल तरकीब है, पीना बंद कर दो. वैसे ही if you want Urdu to survive, teach your children Urdu. Who has stopped you? आपने सीख ली, तो क्यों शर्मा रहे हैं बच्चों को सिखाने में? देखा जाएगा. ज़्यादातर होगा कि आपके पर्सनल लेटर्स बच्चे पढ़ लेंगे तो क्या हुआ? रिप्रेजेंटेशन इक्वल देना पड़ता है कम से कम आउटसाइड पार्लियामेंट एटलीस्ट. जी, yes, आप पूछें. माइक. Yes, that's the last question. Oh, she has the mic already, so we'll have the. अच्छा भाई, after her. जी. अख्तर जी, आपसे थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है, लेकिन हमारे बारे में नहीं, ये सब झूठ है. We are just good friends. हाँ. जी. मैं और मेरी बहन दोनों यहाँ बैठे हैं और मेरी मम्मी सामने बैठी हैं जी. और हम दोनों लोग बचपन से बहुत उर्दू से फिदा हैं. जी. और फिदा इसलिए हुए मुन्नी बेगम की गज़ल सुन के, और ये इंडिया में शिलोंग की बात है, हम लोग शिलोंग में थे. लेकिन उर्दू में क्या आपकी राह में है जो इतना स्पेशल है कि हम उस पर इतना फ़िदा हो गए? स्पेशली क्योंकि मेरी मम्मी बनारसी संस्कृत स्कॉलर हैं, तो थोड़ी शर्म की भी बात होनी चाहिए. देखिए, एक तो इस पे एस्थेटिक्स पे, इस लैंग्वेज की एस्थेटिक्स पे बहुत काम हुआ है. अनदर थिंग, उर्दू राइटर्स हैव गिवन लॉट्स ऑफ इम्पोर्टेंस टू फोनेटिक्स,
कि कान को शब्द खराब नहीं लगना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे जब उर्दू पोएट, जो कॉम्पिटेंट उर्दू, हर कॉम्पिटेंट उर्दू पोएट बहुत अच्छी हिंदी जानता है, और जब वो हिंदी में लिखते हैं तो जितनी अच्छी हिंदी लिखते हैं बहुत कम हिंदी राइटर लिख पाएंगे। एक सुनाता हूँ मैं ऐसे बिना गाए। मन रे तू काहे न धीर धरे, वो निर्मोही मोह न जाने जिनका मोह करे। इस जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा, रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा, काहे ये जतन करे। मन रे तू काहे न धीर धरे, उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभा दे। जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे, कोई न संग मरे। मन रे तू काहे न धीर। ये उर्दू शायर की लिखी हुई, साहिर लुधियानवी का लिखा गाना है। तो उर्दू पोएट जो है, मेरे तो दादा ने इतने वो कृष्ण भजन लिखे हैं कि हद नहीं, वो तो वेरी वेल नोन पोएट, कितने सिंगल, और जो ठुमरियाँ भी लिखी हैं। छा रही काली घटा जियारा मोरा घबराए है, सुन ली कोयल बावरी तो क्यों मल्हारे गाए है। पूरा हिंदी में सब लिखा, बहुत कुछ, बहुत उनकी हिंदी पोइट्री हिंदी है। तो जो अच्छे कॉम्पिटेंट उर्दू पोइट्स हैं, मगर आप देखिए उनकी एस्थेटिक्स और उनकी फोनेटिक्स कितनी अच्छी होती है, बिकॉज दे हैव बीन ट्रेन्ड इन दैट। उर्दू बेसिकली वॉज एन अर्बन लैंग्वेज, तो उसमें उसे बहुत पॉलिश किया गया। जी कहिए आप आइए। अच्छा, वो एक खातून वो आखिरी सवाल के लिए बैठी हैं और वो लोग वहाँ खड़े हैं बंदूक लेके। तो फिर आपको बताएंगे आखिरी सवाल जब आएगा तो आपको जी ठहरो भाई, अभी तो हमारा दिल लग गया है। हाँ। जी, तो आप गा के सुना दीजिए कि आपकी फेवरेट। आप हैं कहाँ? मैं यहाँ हूँ। अच्छा, ओके जी। फेवरेट उर्दू सॉन्ग, आई मीन उर्दू पोइट्री सॉन्ग के फॉर्म में गा के सुना दीजिए। उर्दू अ सॉन्ग यानी जो फेवरेट कोई गा के सुना दीजिए। अरे भाई, मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं, ये फेवरेट मेरा कोई नहीं, मुझे बहुत सारे बहुत पसंद है। Correct, उनमें मुझे लोग पूछते हैं, सर एक बात बताइए, आपकी इंटरव्यू में मुझसे पूछा आपकी फेवरेट बुक कौन सी है। मैं, भैया फेवरेट बुक रिलीजियस लोगों की होती है। रिलीजियस पीपल हैव फेवरेट बुक and they read the same book every day. I read different books. So same way, there are so many good poets and they have written wonderful poetry in different styles, in different, yeah. नहीं, हुकुम ना। अरे वो कहाँ जाने। गा के तो देखिए, मैं जो लिखता हूँ वो दूसरे गाते भैया, मैं खुद नहीं गाता है। चलिए फिर जी, अरे चार तो होनी ही चाहिए, दो से काम नहीं चले, बोले कम से कम चार। नेक्स्ट तैयार हो रहे हैं तो एक कुछ जरा सा हल्का चलिए। फिर उसके बाद चलिए, मैं एक बहुत छोटी सी पोएम सुना देता हूँ, फिर दूसरा आगे दूसरा सेशन है, वो भी अच्छा ही होगा। आई होप। तो बहुत छोटी सी पोएम है। मैंने रोमांटिक पोइट्री बहुत कम लिखी है, इसलिए वो बाकी तो मतलब मुझे कभी कभी ज़रा जब मैं अपनी पोइट्री सुना रहा होता हूँ तो पीपल गेट काइंड ऑफ अ कल्चरल शॉक, कि इसलिए कि मोस्ट ऑफ देम नो मी थ्रू माय फिल्म सॉन्ग। तो बोलते हैं आप रोमांटिक पोइट्री नहीं लिखते हैं, तो मैं कहता हूँ वो मैं फ्री में नहीं लिखता हूँ, तो मगर कुछ फ्री में भी लिखी है, तो बल्कि आई हैव पेड फॉर इट। तो एक छोटी सी पोएम है। मैं भूल जाऊं तुम्हें अब यही मुनासिब है, दिस इज अप्रोप्रिएट दैट आई शुड फॉरगेट यू, मगर भुलाना भी चाहूं तो किस तरह भूलूं कि तुम तो फिर भी हकीकत हो, कोई ख्वाब नहीं। यहाँ तो दिल का ये आलम है, क्या कहूँ कमबख्त, भुला सका न वो सिलसिला जो था ही नहीं, वो एक ख्याल जो आवाज़ तक गया ही नहीं, वो एक बात जो मैं कह नहीं सका तुमसे, वो एक रब्त संबंध जो हम में कभी रहा ही नहीं, मुझे है याद वो सब जो कभी हुआ ही नहीं। तो जावेद साहब, तस्कीन दिले महसूस न हुई
वो सही करम फरमा भी गए, इस सही करम के क्या कहिए, बहला भी गए, तड़पा भी गए।